This conference will now be recorded. Okay, for example, if you want to set up a RAID 1, so you know that RAID 1 is a type of mirror volume. और mirror volume के case में क्या होता है, if you have a two different hard disks with different capacity like 240 gig one and another hard disk contain the same configuration, same capacity, and you wanted to utilize the space as a mirror volume, तो ये क्या करेगा, entire space from RAID 1 hard disk 1 and entire space from hard disk 2, it will just combine the space and you are able to use only 240 gig of space to store your data. जब भी क्लाइंट अपना डेटा इसमें अपलोड करेगा, इफ एनीवन वांट टू अपलोड आवर डेटा विद द हेल्प ऑफ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम और विद द हेल्प ऑफ एनी शेयर स्टोरेज, तो ये जो स्पेस आप स्टोर करेंगे ना, ये आपके एवरी फाइल एवरी डेटा की दो कॉपियां क्रिएट करेगा. इफ यू अपलोड वन डेटा, फॉर एग्जांपल यू अपलोडेड वन फाइल टू रेट वन, तो इसकी ये दो कॉपियां क्रिएट करता है. The benefit of RAID 1 is basically if any hard disk damage are down, we are able to recover our data from different hard drive. Clear? Yes. तो Yes, अगर yes. आपने दो हार्ड डिस्क इस्तेमाल किया है, दो हार्ड डिस्क इस्तेमाल किया है विद सेम कैपेसिटी 240 गीग, सो यू आर एबल, वैसे तो टोटल मिलाकर के 480 होगा, अगर आप इसको कंबाइन करें तो वो 480 हार्ड डिस्क होना चाहिए. बट रेट वन के केस में जब आप मिरर बनाते हैं ना, तो मिरर के केस में होता है कि इट विल क्रिएट अ सेम कॉपी ऑफ योर सिंगल डेटा और उसको दो डिफरेंट लोकेशन में स्टोर करेगा. एक डेटा आपका हार्ड डिस्क वन में जाएगा, दूसरी कॉपी आपकी हार्ड डिस्क टू में जाएगी. बेनिफिट इसका ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर कोई हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है, तो इन दिस केस यू आर एबल टू रिकवर योर डेटा फ्रॉम योर different what we can say that different hard disk, so you are able to just access the data from different hard disk. इसका इस्तेमाल किया जाता है to protect the data. You can also consider as a redundancy if you want to create a kind of failover, data failover, so then you should proceed with the RAID 1. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Cool. So ये basic सा point है. I'll guide you about the properly how we can use the rate system. थोड़ा सा point हम ऐड करेंगे अपने storage के case में. But now we need to proceed according to the agenda that we discussed in our previous class. So in our previous class we discussed like how we can manage the virtual machine over a VMware environment. अगर आपने पास VMware का set install about the install the activity related to the what we can say that how to install the virtual operating system in our OS. I'm just going to connect the external hard drive because we need to upload the ISO image और ISO image की help से हम कोई भी operating system अपने इस environment में install कर पाएंगे. So to access our ESXi, you know that we just need to open browser and अपने केस में जो हमने ESXi install कर रखा है which is 192.168.1.22. This is the IP address of our ESXi host. I'm just going to connect 192.168.1.22 and proceed. Advanced पे जाएंगे, proceed to unsafe पे जाएंगे and root and provide the password information. See, this is the panel of our ESXi 7.0 and we have already created one virtual machine. Our responsibility to install one operating system. According to the agenda, पहले ही हमने mention कर रखा है कि we are on L1 level of task. तो पहले हम L1 level से start करेंगे, zero से start करेंगे ताकि धीरे धीरे से concept को हम increase कर सकें and we try to understand about the how we can manage the troubleshooting of any organization. इज दैट ओके गाइस? उम्मीद है कि यहाँ तक कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको.
एंड एवरीथिंग इज ओके, बट अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप पुटअप कर सकते हैं, बिकॉज आने वाले टाइम पे अपने पास कंटेंट और इंक्रीज होते जाएंगे, और फिर जो आपका क्वेश्चन है उसकी लिस्ट बढ़ती जाएगी, तो इमीडिएटली फिर रिसॉल्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जो अभी का क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes. सो Sir, अभी हम बिल्कुल या only sir. गो अहेड प्लीज। Hello. Yesterday, I आई was कैन हियर not यू। connected due to the network connectivity in my location. So, sir, I was see video recording. Okay, about the storage like that की thin provisioning and तो only आप 1 और 2 का थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिएगा रिव्यू थोड़ा उसको कि थिन प्रोविजनिंग और उसका थिक और थिन में जो डिड यू कल चेक द हाँ रिकॉर्डिंग्स? Yes, yes, I'm understand recording. I ओके, understand recording like a thin provision. What is the thin provision? Thin provision is that if you consider the like we have 100 GB of storage, like consider VM only 40 GB, so it will take 40 GB, but not actual data is only 5 GB, so it will take only 5 GB of storage, and rest hard disk is go to the main storage location. It will be used to the another location for that. So I understand that. And thin provisioning is that main same key. This is the dedicated fix for that location. One VM like that, 40 GB dedicated for that VM. We cannot be used to the another location. Okay, so and thin provisioning is like that. Two thick provisioning is two type, lazy and another is lazy and second one is ईगरली। Eagerly yes sir. zeroed. Eagerly zeroed. Eagerly, yes. Yes. Lazy is lowest speed or migration not supported like that and fault tolerance and consume It will entire not support space. the types of migration. If you proceed with a lazy, it will not help Hmm. you to in case of migration services. Okay. Okay. Yeah. And Yes. second important point, it can not help you to create the fault tolerance. अगर आप fault FTs. Hmm. tolerance भी establish करना चाहते हैं ना, you are unable to do that. We are not Hmm. authorized to manage the fault tolerance In lazy. in La- lazy. Lazy. Okay. And what exactly happen if you proceed to establish your uh, um, uh, hard disk with the help of eagerly? So eagerly can work same just like as lazy, but इसमें क्या होता है benefit ये है कि you are able to access the migration, you are able to perform the task related to the uh, what we can say that about the fault tolerance. You can manage the fault tolerance services. If you want to perform the fault tolerance, then definitely you must need to create your hard disk with the help of thin provision or thick provision eagerly, not lazy. Okay, sir. Sir, Clear? yeah, Shubhajit. Hello, Shubhajit here. Sir, I have one question, just a little bit. Is there any provision to change the provisioning after the creation of If VM? you have a Hmm. data, if you have a data, then no. Okay. If the hard disk o- available, if the storage available in blank space means unallocated, then you can change it. Okay. Okay. Yeah. Okay. नहीं नहीं सर ये It कहने का means just सर Jitendra sir, मैं भी if अपना I रिपीट करता हूँ. Yes. Ask. Please ask. that means, sir, if I have some unallocated storage in my data store, so we can change that, right? If the entire data store, it's a based on our virtual machine. We are talking about in case of adding hard disk in our virtual machine. Yes. 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 डेटा स्टोर में तो लॉजिकल यूनिट नंबर के थ्रू आप असाइन करते हैं ना। हम यहाँ पे हाँ हाँ हार्ड डिस्क जब वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, लेट मी शो यू। क्रिएट करते हैं हाँ whenever we proceed to create virtual machine, see, I'm going to create a one VM like Windows 8, right? Just an example. Select Windows yes operating system, 64-bit operating system, and I think you're talking about this particular panel. यहाँ की बात कर रहे हैं आप? exactly exactly sir. Like we have a three different options. अब आपने यहाँ से क्या कर लिया कि वी जस्ट सेलेक्टेड द थिक प्रोविजन लेजी, आपने यहाँ पे थिक प्रोविजन सेलेक्ट कर लिया। इट मींस दैट द हम्म 10 गीग स्पेस दैट यू प्रोवाइडेड ये पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा विद इन कंज्यूम हो सेकेंड। जाएगा यस यस इवन वी हैवंट एडेड एनी काइंड ऑफ डेटा, इवन वी हैवंट इंस्टॉल एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका 10 गीग पूरा यूटिलाइज कर देगा एज पर द यूटिलाइज थ्योरी करेगा ऑफ आवर थिक प्रोविजन। इज दैट थिक करेक्ट? प्रोविजनिंग
Yes, Yes, sir. sir. Yes. ना अब आपने क्या किया, यू जस्ट यूटिलाइज एंड इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने इसी हार्ड डिस्क के ऊपर, इसी 10 GB के ऊपर आपने विंडोज 8 इंस्टॉल कर दिया या विंडोज 7 इंस्टॉल Yes. कर दिया। तो नाउ योर हार्ड डिस्क कंटेन द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट Yes, मीन्स sir. दैट योर हार्ड डिस्क कंटेन मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल डेटा। ऑक्यूपाई कर Yes. लिया आपने पूरा का पूरा स्पेस, या 10 GB में से 8 GB स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, या 5 GB स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया। अब आप इन फ्यूचर अगर चेंज करना चाहते हैं, थिन प्रोविजन लेजी को थिन प्रोविजन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, थिक लेजी को थिन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। जस्ट वांटेड टू ऐड Okay. वन मोर पॉइंट। कुछ सॉफ्टवेयर बोलते हैं कि आई एम एबल टू डू दैट, बट वो भी 100% श्योर नहीं रहते हैं। 60-40 का गैप रहता है कि हो गया तो ठीक है, अदरवाइज यू विल लॉस द डेटा। तो प्रोडक्शन Okay. इन्वायरमेंट कभी भी थर्ड पार्टी यूज नहीं करती टू मैनेज द स्टोरेज सर्विसेज इन रियल इन्वायरमेंट। कोई भी रिस्क Yes. नहीं लेता है स्टोरेज के साथ। So you are owner and you can perform the entire task by self। किसी थर्ड पार्टी टूल पे आप नहीं जाएंगे, क्योंकि VMware कहता है कि आई एम गिविंग यू द इंटायर सॉफ्टवेयर दैट रिक्वायर टू मेंटेन योर VMware इन्वायरमेंट। आपको किसी थर्ड पार्टी टूल पे जाने की जरूरत नहीं है, हम आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। इतने ऑप्शंस हैं VMware में कि सारी एक्टिविटी हम अपनी तरफ से खुद से मैनेज कर सकते हैं। गॉट इट? Okay, okay, sir. Okay. Sir, as per best practices of as recommendation for the organization, so this is the thin provision is best. कैन यू प्लीज रिपीट Which अगेन? one? Sir, as per standard for the organization, which one is the best? Thin provision is best according to that explanation. एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली हैपन एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास की, होता क्या है ना, क्लाइंट को हम नहीं समझ सकते हैं। यू आर Okay. हैंडलिंग अप टू मोर देन 200 क्लाइंट एंड यू डोंट नो अबाउट कि Hmm. कौन सा क्लाइंट को एक्चुअल कितनी रिक्वायरमेंट है। और एज ए Okay. वीएम एडमिन आपको सर्व करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट कह रहा है मुझे 200 GB का स्पेस दीजिए, तो वी आर Hmm. रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू प्रोवाइड 200 GB टू आवर क्लाइंट। उसको 10 GB की जरूरत है, वो 200 GB मांग रहा है हमसे। ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो कि वो क्या रखना चाहता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है Okay. प्रोवाइड करना, और उसके बाद जस्टिफाई भी करना है आपको कि आपने इतना स्पेस क्यों दिया। मीन हमें Okay. सर्व भी करना है और हमें जस्टिफाई भी करना है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन VMware कहता है कि ठीक है, जो जितना डिमांड कर रहा है आप उसको सर्व करते जाओ, बट आप सर्व करते समय आप थिन प्रोविजन सेलेक्ट कर लोगे तो मैं उसको मॉनिटर करूंगा। जो डेटा होगा उतना स्पेस उसको असाइन कर देंगे, जो डेटा नहीं होगा उतना स्पेस आप दूसरे को असाइन कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड के केस में, VMware रिकमेंडेशन के केस में, वी ऑलवेज ट्राई टू प्रिफर थिन प्रोविजन, क्योंकि ये हमारे स्पेस को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इन केस ऑफ इमरजेंसी हम किसी भी क्लाइंट को स्टोरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? Okay, sir. Yeah. Okay, sir. Okay, ग्रेट। sir. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। तो अभी तो हम VM पे हैं। वी ऑलरेडी क्रिएटेड वन वर्चुअल मशीन विद कैपेसिटी ऑफ 4 gig of RAM, 2 core of processor, 3.1 gig of sorry USB, and everything is okay. And we added up to 15 gig of hard drive। 15 GB के आसपास इसमें हार्ड With डिस्क thin प्रोवाइड कर। provisioning, yes. With thin provisioning, yes. Yes, I'm going to install the OS because you know that we don't have any operating system। यहाँ पे अपने पास कोई भी OS नहीं है current time पे। We are able to see it, but unfortunately we don't have a OS। तो definitely it look like just it will give you the BIOS option only। ये आपको BIOS option provide कर रहा है। Question: how we can install the operating system? So very simple। Go to the action and click edit setting। We are trying to install OS, ठीक है। और उसके बाद CD DVD पे आ जाएंगे। We are able to find two option। One is host device and another is data store ISO file। We don't have a host device, so we can just need to proceed with data storage ISO image। सेलेक्ट करेंगे इसको। ये अपना Uh, स्टोरेज है, और इस स्टोरेज में आपको जो भी OS इंस्टॉल करना है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, जस्ट नीड टू क्लिक अपलोड। इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन योर बेस मशीन। और यहाँ बेस मशीन से हम क्या करने वाले हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड सॉफ्टवेयर। यहाँ से हम ISO इमेज अपलोड करना चाहते हैं। क्लाइंट OS में गए, और फ्रॉम क्लाइंट OS आई एम गोइंग टू ओपन विंडोज 10 या विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी अपने पास है एज ए क्लाइंट, उसको हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। 7 भी है, 8.1 भी है,
चलो, लेट्स प्रोसीड विद विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यू हैव टू वेट, क्योंकि जो भी आईएसओ इमेज की कैपेसिटी होगी वो इस पे अपलोड होगी पहले, एंड अपलोड होने के बाद वी विल प्रोसीड टू इंस्टॉल आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। The procedure consider as a mount ISO image in our data center, and with the help of ISO Data image storage. we are able to install the operating system. Is that okay? Okay, sir. Sir, what is an Yes. host device? That's there was second option, host device. Host device, So if you have any in which DVD, schools? Okay, no, if you have any DVD, if you have any USB, then you can proceed with the host device. okay. अगर आपका आईएसओ इमेज आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में अवेलेबल है, एंड यू वांटेड टू असाइन द ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ आईएसओ इमेज फ्रॉम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, तो होस्ट डिवाइस का सिलेक्शन करेंगे। बट इन दिस केस एवरी टाइम यू नीड टू परफॉर्म द सेम टास्क, एवरी टाइम नीड टू परफॉर्म द सेम टास्क कि आपको हार्ड डिस्क लगानी ही पड़ेगी कोई भी नया ओएस इंस्टॉल करना है तो। क्लियर? बट अगर आप Yes, yes, sir. बट Yes. अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की आईएसओ इमेज ही अपलोड करके रख देते हैं यहाँ पे, तो Data store जितनी में भी हाँ. नई वीएम बनाएंगे इन फ्यूचर, जो भी नई वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करेंगे ना, उन सभी वर्चुअल मशीन में एक ही आईएसओ इमेज से आप होस्ट कर सकते हैं। Yes, sir. तो नॉट नाउ बट इन केस ऑफ वी सेंटर सर्वर में हम लोग लाइब्रेरी बनाएंगे जिसमें आईएसओ इमेज को अपलोड करके रखी जाती है, कंपनी की तरह, ऑर्गेनाइजेशन की तरह। जैसे लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी आईएसओ इमेज बना Mhm. के रख देते हैं, क्लाइंट को जब भी जरूरत पड़ती है, डिमांड की उसने कि मुझे लिनक्स की मशीन चाहिए, मुझे मैक की मशीन चाहिए, तो वो सारे आईएसओ इमेज आपको एक ही लोकेशन पे मिल जाएंगे, एंड यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट द आईएसओ इमेज एंड इंस्टॉल विद अवर वर्चुअल मशीन। आप वीएम में डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? So Yes, that's sir. why Yes. we Yes, need sir. to and upload the Yes. ISO image for permanent। आप permanent के लिए रखेंगे ताकि इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ती है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कोई भी वर्चुअल मशीन चाहिए तो आप उसको इंस्टॉल कर पाएंगे। इज दैट फाइन? Okay, sir. Yeah. ठीक है, so we have to wait because our Yes, sir. installation is in progress, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हमें इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने तक, सॉरी अपलोडिंग कंप्लीट होने तक। एंड वंस वी कंप्लीट द पार्ट ऑफ ISO image uploading, then we'll proceed for the next step, मीन्स अगला स्टेप रहेगा हमारा इंस्टॉलेशन के लिए। इज दैट ओके यहाँ तक? Yeah. Yeah, sir. Yes. Yes, yes, sir. लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। Sir, फिर why the issue is come there like that कि Subhajit asked that question कि when we install the EXI host in 240 GB of disk which is on RAID 1, after installation it show only 100 GB. So sir, we are not identify कि where is the नहीं नहीं नहीं, 140. हो तो गया क्लियर, हो तो गया क्लियर ना। whenever we नहीं. set up our data, whenever we establish a rate 1, जब आप rate 1 तैयार करते हैं ना, तो आप हम्म. टोटल आपके पास यहाँ का एग्जांपल देख लेते हैं ना, इसी एक का एग्जांपल देख लेते हैं। नहीं नहीं सर, वहाँ पे हमें तो नहीं 240 GB, वी से ओनली don't 40 GB, 240 GB ऑफ इन रेड 1, नहीं but नहीं after installation अंडरस्टूड, of EXI host it show only 100 GB. ओके ओके, अंडरस्टूड। सी, दिस इज आवर But रेट सिस्टम, इसमें आपको 240 ही मिलेगा। दो हार्ड डिस्क आपने अटैच किया हाँ तो आपको 480 हार्ड हाँ डिस्क नहीं मिलेगा, तो यू नीड टू हाँ कैलकुलेट टू ओवर फोर्टी मिलेगा 240 मिलेगा सर, ये 240 क्लियर है बिल्कुल। 40। ये क्लियर है ओके वेट, जस्ट वांटेड टू क्लियर, वो जीबी था या जीआईबी था, जीबी था या गिग था? सर जीबी कैन था। यू प्लीज कंफर्म? जीबी था सर जीबी जीबी था। जीबी था हाँ ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन केस ऑफ जीबी, ये कंसीडर करता है 1000 MB इक्वल टू 1 GB। ओके 1000 MB इक्वल टू 1 GB। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? ओके
अगर आप कोई डिवाइस देखते हैं और उसमें गिग लिखा रहता है, GIG या GIB दिखाई पड़ता है ना, तो इट मीन्स दैट वो कंज्यूम कर रहा है 200 1024 1024 MB टू फोर or 1 इक्वल टू GB 1 GB। 1 वन जीरो gig. ये इंट्रोड्यूस जी। किसने किया? ये इंट्रोड्यूस किया क्लाउड ने। जीबी और गिग ओके। में जो डिफरेंस है ना, वो क्लाउड ने इंट्रोड्यूस किया कि इस तरीके से जब भी हम कोई हार्डवेयर परचेज करते हैं ना, तो जो हम्म। मैन्युफैक्चरर कंपनी है, चाहे आप रैम परचेज करो, SSD परचेज करो, हार्ड डिस्क परचेज करो, या मोबाइल के मेमोरी परचेज करो, वो ऑलवेज हर एक कंपनी इसी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये ओके। मैन्युफैक्चरिंग जो है इसी एमबी को ये काउंट करता है। नाउ बट सॉफ्टवेयर, हमेशा सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर है ना, जो उसके अंदर कोडिंग है, सॉफ्टवेयर तो ऑलवेज प्रीफर ना कि आई नीड 1024 MB होगा तभी हम कैलकुलेट करके उसको 1 GB बनाएंगे। इज दैट करेक्ट? सॉफ्टवेयर तो अपनी जगह पे रहेगा। आप हार्डवेयर में कितना भी चेंज कर लो, हम लेबल कुछ भी लगा दें, सॉफ्टवेयर तो 1 सेकंड के अंदर उसको पकड़ लेगा ना। यस सर, करेक्ट। जो लॉसेस ऑफ डेटा आपका हुआ है, वो लॉसेस नहीं है। पहले तो इसमें से 24 MB आपके कम हुए हैं, पहला। प्लस जब आप पार्टीशन करते हैं, जब आप फॉर्मेट करते हैं ना, जब आप फॉर्मेट करते हैं, तो फॉर्मेट करने पर आपकी हार्ड डिस्क में ट्रैक, सेक्टर, जोन और सिलेंडर तैयार होते हैं। ट्रैक, सेक्टर, जोन एंड सिलेंडर। कभी भी आप कोई भी हार्ड डिस्क परचेज करो, आपको एक्चुअल स्पेस कभी भी नहीं मिलेगा। आप 120 की हार्ड डिस्क परचेज करोगे, तो आप 120 में 115 या 114 GB की डेटा अपलोड कर पाओगे। अगर आप 500 GB हार्ड डिस्क परचेज करोगे, तो आपको 480 या 475 GB ही डेटा स्पेस मिलेगा सेव करने के लिए। जितनी ज्यादा हार्ड डिस्क की कैपेसिटी रहेगी, उतना ज्यादा लॉसेस रहेगा हमारा स्पेस का। एक्यूरेट आपको कभी नहीं मिलेगा, पहला। ये ट्रैक, सेक्टर, जोन जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के टाइम पे कुछ ना कुछ स्पेस का लॉस होता है। प्लस आपने इस पे ESXi इंस्टॉल किया, ESXi खुद एक्सपैंड करके 80 टू 120 गिग की के हार्ड डिस्क को कंज्यूम करेगा, वो खुद के लिए। एंड उसके बाद जो रिमेनिंग स्पेस आपको मिल रहा है, वो मिल रहा है आपकी VMs के लिए। तो ठीक है ना, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। एक्यूरेट तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा स्पेस, किसी भी हार्ड डिस्क की बात कर लो, आप मेमोरी कार्ड की बात कर लो, एक्यूरेट कभी भी नहीं मिलेगा। इज दैट ओके? यस सर। सर पर अभी तक वो, या तो इंस्टॉलेशन में कुछ इशू आया हमें, मे बी, कि आप बिकॉज। नहीं, वो हार्डवेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बहुत सारी सर्विसेज आपकी टर्न ऑन हो गई हैं, जिसकी वजह से आपका जो OS का ड्राइव है वो बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये वेरीफाई करना है कि कितनी सारी सर्विसेज आपके उस CSXi में रन कर रही हैं, क्या क्या चीज़ें एक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर पाएंगे। इज दैट ओके नाउ? यस सर। Yes, yes. Okay, cool. So our ISO image is almost installed. We need to proceed for the next point. Sir, another point is there कि we practiced that test environment. Can we provide the test environment for that Yeah, practice? Hello? I can hear you. Please tell me. Yes, sir. Sir, for test environment, अभी to for practice session, तो where we practice the. For the practice purpose, what we need to do, we will set up our online lab. Hmm. ठीक है, एक तो हम Okay. ऑनलाइन लैब सेटअप करेंगे, एंड I'll try to set up a one remote server as well, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे। Okay. So because ऑनलाइन you का know ऑप्शन है, that. आई हेल्प यू टू क्रिएट अ ऑनलाइन सेटअप, कैसे उसको बनाते हैं ना, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। Okay, sir.
Now 85% completed, and we provided a RAM for 4 gig and I think 2 core of processor, 15 gig of hard drive. Maybe hard disk का issue हो सकता है, but let's see. Our responsibility to install at least one operating system जिस पे हम सारे activity perform कर सकें. Okay, 93% completed. Once we are mounting the operating system. Currently we are mounting the operating system and then proceed for the installation. The second step is install operating system, then configure virtual machine VMware tool. उसके बाद जो बेसिक से पार्ट हैं लाइक वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करना, उसमें हॉट प्लग को एक्टिवेट करना, हाउ वी कैन मैनेज द अनदर ऑप्शंस विद ऑफ वर्चुअल मशीन, ये सभी पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज. Done. So almost we successfully uploaded the ISO image of Windows 11 operating system that we will use to install on our virtual machine, VMware virtual machine. So पहले स्टेप में हमने ISO image upload की and दूसरे स्टेप में हम इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं. Go to the action, click edit setting. Under the edit setting, we just need to click on CD DVD and we just need to provide data storage, ISO, select your ISO image 4 point something GB के आसपास की कैपेसिटी है, सेलेक्ट करेंगे इसको and click save. And what you need to do, मशीन को कर दो आप रीस्टार्ट. हमने ISO image दे दिया है इसको, we just need to restart it and press enter ताकि ये CD से बूट कर जाए. Now booting started. हमने अपने विंडोज मशीन को, सॉरी, इस VMware की वर्चुअल मशीन को बूटिंग के लिए लगा दिया, इंस्टॉलेशन के लिए लगा दिया. इज दैट क्लियर? Yeah. Yes. फाइन. सिंपल बेसिक सा स्टेप है जो हम स्टेप यूज करते हैं ऑन प्रोमाइसेस पे. सेम प्रोसीजर आप यूज करेंगे टू इंस्टॉल योर ऑपरेटिंग सिस्टम. Basic step required to install our Windows 11 operating system in ESXi host. We don't have any product key. Proceed with. I don't have a product key. I wanted to install Pro क्योंकि हम आगे चल के इसको डोमेन का मेंबर बनाएंगे. So that's why I need to install Pro. Do not install Home Basic, otherwise आप डोमेन का मेंबर नहीं बना पाएंगे. Proceed with Pro. Next. And accept Microsoft license. Install. Custom. We have a 15 gig space. अभी जो हमने VM को create करते समय provide किया था. And just need to click next. Wait for the installation. Installation is started and meanwhile let me guide you about the another point कि जब आप VM इंस्टॉल करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ESXi होस्ट के ऊपर, तो उसके बाद का स्टेप क्या होता है, उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा, प्रोफेशनल तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के VM इन्वायरमेंट को किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं. I hope guys you are able to mount your operating system disk in our ESXi virtual machine and also you are able to install the virtual machine operating system in VM. Any question, any doubt, please let me know. Hello.
Everyone can hear me? Yes. यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का कोई डाउट? No, sir. सर मुझे एक बार बताइए, वो जो बायस का जो एफ बूट आता है ना, एक बार दिखा सकते हैं? सॉरी, वो जो बायस से जो बायस ऑप्शन जो आया है, जी5 बूट अपनी नॉर्मल में जो आया सो में जो नॉर्मली ले लेता है, वो जो बायस जो स्क्रीन आ रहा है ना, जो वीएम मशीन वाला, वो एक बार दिखा सकते हैं कैसे ऑप्शन चूज किया है? एक बार एक्सप्लेन कर वी दीजिए। जस्ट इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, सेकंड वीएम बनानी पड़ेगी उसके लिए ना। ओके, श्योर, ठीक है। इस केस जो में है if वीएम we का we जो, proceed with the BIOS setting, we need to stop the installation. ओके ओके, श्योर श्योर। Now, इसको हम प्रोसीड कर देते हैं, मीन्स इंस्टॉलेशन के लिए प्रोसीड कर देते हैं, एंड लेट्स प्रोसीड फॉर टू अंडरस्टैंड अबाउट द अनदर पॉइंट। जो अनदर पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि रियल इन्वायरमेंट के केस में जब आप ओएस इंस्टॉल कर देंगे तो इंस्टॉलेशन के बाद कौन सा स्टेप, कौन सा प्रोसीजर आपको यूज करना चाहिए। So another point that we need to know in case of what we can say that in case of ESXi management, it's our responsibility to understand VMware tools. अगला जो point है configure and install VMware tools. So what exactly happen in case of real environment जब भी हम OS install करेंगे ना, after installation of any operating system, I'm not talking about कि केवल Windows 11 के साथ आप कोई भी operating system install करते हैं, ठीक है, you must need to install the VMware tool. आपने क्या करना पड़ेगा? You need to install the VMware tools on your virtual machine. So for example, this is our ESXi host that we established. In ESXi host, we are trying to install one virtual machine. Windows 11 operating system हम इसमें plan कर रहे हैं to install, and once we install the Windows machine, Windows or any operating system, the another important point, install VMware tools. हम अगला स्टेप क्या होगा? VMware tools को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। और VMware tools, what is VMware tool? So we should know about, it is a collection of drivers means इसमें आपको LAN ड्राइवर एंड चिपसेट ड्राइवर और साथ ही साथ ग्राफिक ड्राइवर एक साथ इंस्टॉल होने के एक साथ आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएंगे। It will help you to manage your virtual machine after the installation of VMware tools. VMware tools की हेल्प से आप इतने ड्राइवर्स को इंस्टॉल करते हैं ताकि आप अपने वर्चुअल मशीन्स को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल और मैनेज कर पाए। Without VMware tools, we are unable to perform the task. Without VMware tool, it will impact to our virtual machine. Is that fine? Yes. Yes, sir. Yes, understand. Fine. So let me check the status of our OS. So it's almost installed, 90% completed. OS जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है, वी विल प्रोसीड टू इंस्टॉल द VMware टूल्स ताकि हम वर्चुअल मशीन्स को मल्टीपल वे से RDP के थ्रू, डायरेक्टली कंसोल के थ्रू, इसका स्नैपशॉट या इसमें एडिशनल हार्ड डिस्क ऐड करना, ये सभी टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। So we must need to wait for a few more minutes. जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है, we will proceed to install the VMware tools ताकि इसके जो ड्राइवर्स वगैरह हैं उनको हम आसानी से मैनेज कर सकें।
Done. Meanwhile, if you have any question, please let me know, guys. What is guest operating system? Okay, waste called the guest operating system. It's also considered as a guest OS. जब भी हम कोई अपनी तरफ से इंस्टॉल करते हैं, मैनुअल इंस्टॉलेशन करते हैं ना, which is considered as a Mhm. guest operating system. We have a various way to create our virtual machine. OVA and OVF के थ्रू VM को create किया जाता है. जब आप OVF Hmm. and OVA virtual machine से create करते हैं, it means that VM पहले से create थी, आपने सिर्फ deploy किया. और जब Okay. आप फ्रेश वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो इट मीन्स दैट यू आर ऑनर और आप डिसाइड करोगे कि कौन सा ओएस आपको इंस्टॉल करना है. दैट्स व्हाई इट्स कंसीडर एज ए गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, तो जैसे मान लो जो है वी टेक द बैकअप स्नैपशॉट एंड रिस्टोर टू द अदर लोकेशन, तो दिस इज द गेस्ट ऑपरेटिंग, नहीं, जब जस्ट आप लाइक दैट। टेम्पलेट बनाते हैं ना, जब आप टेम्पलेट हाँ बनाते हाँ। हैं तो टेम्पलेट दो फॉर्मेट में बनते हैं. एक ओवीएफ टेम्पलेट और एक ओवीए टेम्पलेट. तो जब आप हम्म। OVF एंड OVA टेम्पलेट को प्रोसीड करते हैं तो वो आपके गेस्ट VMware ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं. जब आप फ्रेश ओएस इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके गेस्ट ओएस कहलाते हैं. गेस्ट है हो रहा है ना। द टेम्पलेट पार्ट विल बी कवर इन नेक्स्ट ना। Template you are able to create with the help of vCenter server. Without vCenter server we can't do that ना. तो अभी तो हम अभी ESXi को कंप्लीट करेंगे, देन फिर उसके बाद जो स्टोरेज का पार्ट है और ओके। स्टैंडर्ड नेटवर्किंग है, डोमेन का हम्म। कॉन्फ़िगरेशन है, वो कंप्लीट होने के बाद लास्ट में जाएगा vCenter सर्वर. ESXi ओके। डोमेन शेयर स्टोरेज कंप्लीट होने के बाद विल डिस्कस अबाउट द vCenter सर्वर क्लोन टेम्पलेट HADRS माइग्रेशन, वो सारा पॉइंट्स उसमें जाएगा. ओके। इट इज फाइनल स्टेज ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जो नॉर्मली ऑन प्रोमाइसेस पे टाइम लगता है, लगभग उतना ही टाइम लगेगा यहाँ पे भी. बेसिक सेटिंग्स रिक्वायर्ड टू मैनेज आवर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जो बेसिक सी सेटिंग्स है वो आपको असाइन करनी पड़ेगी. यूजर नेम वगैरह जो फिलअप करने होते हैं, यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड द बेसिक इन्फॉर्मेशन.
सर जैसे अभी हमने जो है अभी जो अभी हमने थिन प्रोविजनर ये सब चीज़ समझी अभी, उसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, जो हमने साइज दिया है उसके अकॉर्डिंग ही मशीन यूज करेगी उतना स्पेस। अभी एज जैसे पर मेरे द पास ना एक, कंजप्शन। हाँ। यस सर, अभी यूज केस आया था सर एक ये, कि ये वन मशीन इज देयर विच कैन कंज्यूम ऑल द स्टोरेज स्पेस। कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमने तो उसको दिया ही नहीं है सर, कि उसको तो डेडिकेटेड हमने 40 GB या 100 GB दिया, नहीं, तो उसने अदर का भी नहीं कंज्यूम है कर ना, लिया। बिल्कुल यूज केसेस है ना। ऐसा पॉसिबल है कि एक मशीन पूरे स्पेस को कंज्यूम कर रही है, इट इज पॉसिबल। बिकॉज व्हाट सर हैपेंड, यू शेयर्ड द स्पेस यूजिंग थिन प्रोविजन। हम्म थिन प्रोविजन में क्या होता है ना, कि आपने एक की हम्म स्टोरेज बनाया, फॉर एग्जांपल यू डिसाइडेड हम्म वन स्टोरेज, यू क्रिएटेड वन स्टोरेज विद कैपेसिटी ऑफ मे बी, आपने एक स्टोरेज सेटअप किया विद कैपेसिटी ऑफ 2 TB फॉर एग्जांपल। द कैपेसिटी ऑफ हम्म इंटायर स्टोरेज इज अप्रोक्सीमेटली 2 TB, ठीक है। आपने इसको ESXi को असाइन किया, यू प्रोवाइडेड द स्पेस टू द ESXi होस्ट, एंड ESXi के थ्रू आपने वर्चुअल मशीन को भी सेम स्पेस प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे या आपने VM को भी स्पेस प्रोवाइड कर दिया। देन हम्म 2 TB का स्पेस लॉजिकल यूनिट नंबर के थ्रू यहाँ पे गया, और हम्म फिर अगेन इसमें से आपने पूरा का पूरा 2 TB का स्पेस इस VM को असाइन कर दिया। बट उस टाइम पे आपने सेलेक्ट किया था थिन प्रोविजन। हम्म क्लियर? So once you assign the space using thin provision, 2 TB तो बहुत होता है, इसमें आपने इंस्टॉल किया Windows 10 अच्छा and it just ओके consuming, now it's consuming only and only 200 GB। ओके 2 TB में से ये केवल 200 GB का डेटा यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। ओके एवरीथिंग इज ओके, नाउ वी हैव अ रिमेनिंग स्पेस। रिमेनिंग स्पेस में अपने पास 1.8 TB का स्पेस अवेलेबल है। तो आपने ओके क्या किया, फटाफट से इसी में से दूसरे वर्चुअल मशीन को प्रोवाइड कर दिया, दूसरे हम्म ESXi को भी आपने असाइन कर दिया। आपने देखा कि 1.8 गिग फ्री है, ठीक है। यहाँ पे ESXi थे, यहाँ पे वर्चुअल मशीन थी, आपने सबको असाइन कर दिया इसी में से, अवेलेबल स्पेस में से 1.8 में से। ओके नाउ अब ऑनर कौन है इसका, 2 TB का ऑनर कौन है, 2 TB का ऑनर ये विंडोज 10 है, विंडो 10 क्योंकि आपने डे वन इसको दे दिया 2 TB का। इज दैट करेक्ट? यस अब अनफॉर्चुनेटली इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, इसने क्या किया, अपना हम्म डेटा बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले 200 GB था इसके पास टोटल कंजप्शन, अब यहाँ पे इसने कर दिया 800 GB, देन 1 TB गिग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम्म जब ये इंक्रीज करेगा स्पेस, तो बाकी लोगों को स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑनर नहीं है। इसमें से जो पहले डेटा अपलोड कर देगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले डेटा हम्म अपलोड कर देगा स्पेस उसको यूटिलाइज हो जाएगा, उसको मिल जाएगा, ऑथराइज ओके होगा। इसलिए स्टोरेज को प्रोवाइड करते समय आपको एक प्रॉपर तरीके से एक्सेल सीट बनानी पड़ती है, एक प्रॉपर तरीके से आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ता है, कि यू शुड नो अबाउट कि कौन सा स्टोरेज कहाँ पे गया है और उसके कितने डिवाइडेशन है, कितने पार्ट में उसको आपने कैटेगराइज किया। इट्स रियली मैंडेटरी फॉर अस। ओके। तो ये और प्रॉब्लम है एक कि ही जो बात, वीएम एडमिन है उसने प्रॉब्लम, मतलब उसने सही तरह से जो है कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, तो यही प्रॉब्लम की वजह हाँ से हुआ है। बिल्कुल, एग्जैक्टली उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और एक ही लॉजिकल यूनिट नंबर को पूरी तरीके से असाइन करने के बाद उसमें से छोटे छोटे टुकड़े में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड। हाँ, दो तीन में कर हम्म दो, कोई तकलीफ नहीं। अब मल्टीपल में क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ इशू। ओके सर। क्योंकि सर मेरे पास कई बार क्वेश्चन मतलब पुटअप होते हैं कि हमारी पूरी की पूरी मशीन ने ही कंज्यूम कर लिया। अब वो समझ में आया आपने जो बताया कि थिंक प्रोविजनिंग में अगर आपको करना है तो वहीं पे ही आप 100 GB लेके चलो, उसको फिर कंज्यूम ही नहीं करेगा 100 से ज़्यादा, नहीं करेगा ना सर मैक्सिमम, अगर या आप करेगा? ठीक लेके चलें, नहीं नहीं किसमें, हाँ, अगर थिन में मैंने जब कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ उसको 100 GB दिया 1 TB में से, तो हम्म, मैक्सिमम तो 100 ही यूज़ करेगा ना। अगर मुझे ज़्यादा करना है तो चेंज करना पड़ेगा ना उसमें मशीन में, हाँ बट एडिट के बट आगे।
बट उस 100 गिग में अगर आपने थिन यूज किया है तो आप किसी हम्म, और मशीन को ऑथराइज नहीं करोगे, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। क्योंकि थिन में क्या है, आपने 100 गिग असाइन किया और 100 गिग असाइन करने के बाद आपने प्लान किया कि ठीक है इसी 100 गिग में से किसी और को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हम्म। ये थिन में तो जितना कंज्यूम होगा उतना ही डेटा आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ, उतना ही दिखेगा। 100 में से अगर 100 GB दिख रहा है तो 100 GB, वो 5 GB दिख रहा है तो 5 दिखेगा। करेक्ट। 100 गिग आपने असाइन किया बट एक्चुअल यूसेज 50 GB है, तो आपके लिए तो 50 GB फ्री हो गए ना। यस। स्टोरेज में तो स्पेस 50 GB का दिखाई पड़ेगा, फ्री है। बट आपने 100 गिग दिया था, अभी यूसेज नहीं है, आगे जाके यूसेज आ सकता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि इन फ्यूचर ये स्पेस बढ़ सकता है, क्योंकि हमने डे वन इसको 100 गिग असाइन किया था। सर 100 से ऊपर तो नहीं बढ़ सकता ना? 100 के ऊपर नहीं जाएगा, फिर यू हैव टू क्रिएट। यस, उसको एडिट करना पड़ेगा मेरे साइज को। Final step required, we just need to provide the pin to login purpose. Okay, we just need to proceed. Final step. सर एक लाइनक्स मशीन भी डेमोस्ट्रेट करके दिखाइएगा सर, जब भी टाइम मिले। Sure. आज नहीं। हाँ हाँ श्योर। मल्टीपल ओएस इंस्टॉल करके यहाँ पे देखेंगे, मीन्स विंडोज तो है ही है, लिनक्स। हाँ। I'll help you to install the विंडोज। Mac operating system. थोड़ा सा टाइम लगता है मैक में, बट we are able to install over a ESXi host. यस। या सेंटोस सर, अगर हो तो। ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे, कोई इशू नहीं। We have a CentOS, I think.
Okay, guys, it's taking time, so can we take a small break, just a 10-minute break, and resume it again? Okay, sir. Okay. Thank you. So let's take a 10-minute break and continue. Okay. This conference will now be recorded. Hello. Yes, sir. Fine. So we successfully installed one Windows machine in our ESXi host, जो हमने VM install किया है. And now what we need to do, another step, we need to install the VMware tools. अगले step में हम क्या करने वाले हैं? VMware tools को install करेंगे और VMware tools को install करने के लिए very basic step that we need to use. Go to the action. Under the action we are able to find guest OS और आप guest OS में देखिए install VMware tools. ठीक है? ये आइकन दिखाई पड़ेगा. We just need to click here. क्लिक करने के बाद एक डीवीडी काइंड ऑफ डीवीडी एक अपने वर्चुअल मशीन में माउंट हो जाएगी. You just need to open this PC and we are able to find one DVD drive with capacity of 140 MB that contain all the drivers related to your virtual machine. इम्पॉर्टेंट इसलिए है, अगर आप इसमें ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे, यू आर अनेबल टू यूज योर कीबोर्ड एंड माउस प्रॉपरली. आप कोई भी डेटा ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे फ्रॉम बेस मशीन टू वर्चुअल मशीन और वर्चुअल मशीन टू बेस मशीन. सो फॉर द बेटर परफॉर्मेंस, फॉर द बेटर यूज ऑफ आवर वर्चुअल मशीन, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू इंस्टॉल द VMware टूल्स. हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें VMware टूल इंस्टॉल करेंगे. राइट क्लिक एंड वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद इंस्टॉल. Installation is in progress. Make sure you have enough space. Okay, so we don't have a space in VMDK file, so I need to increase the space. जब भी हम कोई भी VMware tool install करेंगे, definitely it will consume lots of space. So let me try to check. Make sure you have enough space in C drive. In my case, I don't have a much space, that's why I just display. Okay, wait. Okay, let me restart it because it's consuming lots of space from our base machine, so we just need to increase some space in backend.
Okay, let me connect it again and try to access our virtual machine. Okay, so let me install it again because स्पेस कम होने की वजह से ये abort कर दिया. I'm just going to install it again. Guest OS में जाओ आप, Action में जाकर के, we just need to click on Guest OS or install VMware Tools. VMware Tools में जाकर के, we just need to open it. VMware Tools को open करेंगे and install. After installation of VMware tool, we are able to access our virtual machine through RDP या फिर जो other tools हैं उनके help से हम अपने इस VM को access कर पाएंगे. Next, next and install. इसमें there is no configuration, sir. Sorry, There is no configuration required, only just run. just right click and proceed to install. Okay.
Done. We successfully installed VMware tools and now you can proceed for the another point. अब आप इस VM को just like a base machine utilize कर सकते हो. You are able to access the virtual machine through RDP या फिर नए कंसोल में इसको एक्सेस करना है. If you want to transfer the data between base machine to our virtual machine, base machine और virtual machine के बीच में अगर communication करना है, everything possible means we are able to manage each and every points. Now let's proceed for the another step. According to the agenda, we completed the OS, we completed the VMware tools, and now let's talk about the concept of adding hardware. एडिंग हार्डवेयर में जो सबसे ज्यादा टास्क रियल इन्वायरमेंट में आपको फेस करने को मिलेगा विच इज कोरिलेटेड टू द डिस्क मैनेजमेंट कि एक वर्चुअल मशीन के अंदर स्टोरेज कैसे असाइन करना है, सीपीयू कोड्स कैसे मैनेज करते हैं, उसकी रैम को कैसे इंक्रीज किया जाता है, या अबाउट द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन. तो ये सभी पॉइंट्स हमें मालूम होने चाहिए. तो लेट मी गाइड यू अबाउट द प्रोसीजर हाउ वी कैन मैनेज द हार्डवेयर फॉर आवर वर्चुअल मशीन दैट वी क्रिएटेड. तो वी हैव अ वेरियस वे टू एक्सेस. हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करते हैं एंड गो टू द कंसोल एंड यू जस्ट नीड टू कनेक्ट विद ओपन कंसोल न्यू विंडो. ठीक है, एक यहाँ पे हो जाएगा. एंड सेकेंड ऑप्शन कंसोल पे जाकर के वी आर एबल टू फाइंड रिमोट लॉन्च रिमोट कंसोल. एक टूल है जिसको आप डाउनलोड करेंगे एंड डाउनलोड करने के बाद यू आर एबल टू एक्सेस इट. अभी हम दूसरे ब्राउजर में इसको एक्सेस कर लेते हैं. कंसोल पे जाकर के ओपन इन कंसोल, अनदर कंसोल, सॉरी, जस्ट नीड टू ओपन न्यू विंडो में जाएंगे, न्यू टैब पे क्लिक करेंगे. दिस इज आवर वर्चुअल मशीन एंड यू आर एबल टू यूज इट जस्ट लाइक अ बेस. नाउ फाइंड अबाउट द हार्डवेयर कि इसमें क्या क्या हार्डवेयर लगा है. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हार्ड डिस्क. स्टोरेज की बात कर लेते हैं. स्टोरेज हमने 15 गिग के आसपास प्रोवाइड कर रखा है. जस्ट नीड टू ओपन डिस्क mgmt.msc. it will redirect you on hard disk management, and over a hard disk management it will help you to understand about the current status of our hard drive. सॉरी, ये बेस मशीन का ओपन कर दिया इसने. आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक हियर, ओपन रन डिस्क mgmt.msc. वी आर एबल टू फाइंड 14 पॉइंट समथिंग जीबी के आसपास का स्पेस है. सी ड्राइव है अपने पास. If client requested, can you please assign me a more space? If client requested, can you please provide me one more hard drive जिसमें हम डेटा रखना चाहते हैं, 10 GB 50 GB जितने भी कभी कैपेसिटी अपने पास अवेलेबल है. वी शुड नो अबाउट हाउ वी कैन डू दैट. वेरी सिंपल स्टेप. आप कंसोल पे रहेंगे एंड कंसोल पे राइट क्लिक करना है आपको वर्चुअल मशीन पे एंड एडिट सेटिंग पे जाएंगे. एडिट सेटिंग पे जाने के बाद एड हार्ड डिस्क पे जाएंगे. न्यू हार्ड डिस्क, वी हैव अ वेरियस वे टू कनेक्ट आवर हार्ड ड्राइव. न्यू स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव, एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव, न्यू परसिस्टेंस मेमोरी. परसिस्टेंस मेमोरी तभी आएगा जब हम शेयर स्टोरेज ऐड करेंगे. एंड न्यू रॉ डिस्क. वी हैव अ 4 डिफरेंट मेथड टू ऐड हार्ड डिस्क इन अवर वर्चुअल मशीन. तो अभी अपने पास कोई भी शेयर स्टोरेज नहीं है तो परसिस्टेंस मेमोरी नहीं अलाउ कर सकते आप. शेयर स्टोरेज नहीं होने की वजह से वी आर अनेबल टू अलाउ द RDM, रॉ डिस्क मैपिंग भी नहीं कर सकते. हम यहाँ पे चलेंगे न्यू स्टैंडर्ड डिस्क पे और यहाँ पे असाइन करने वाले हैं. जस्ट लेट मी प्रोसीड विद 10 गीग ऑफ स्पेस. एक एडिशनल हार्ड डिस्क प्रोवाइड करना चाहते हैं. 19.8 पॉइंट समथिंग स्पेस अवेलेबल है. 19 में हम 10 GB स्पेस देना चाहते हैं. एज वी नो दैट प्रोसीड विद थिन प्रोविजन, अदरवाइज ये पूरा का पूरा 10 GB का स्पेस इमीडिएट कंज्यूम कर लेगा. सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद थिन प्रोविजन. और थिन प्रोविजन के केस में सेम थिंग. सेटअप सेव करने के बाद बैक करेंगे. यहाँ पे देखिए आप 10 GB की हार्ड डिस्क अपने वर्चुअल मशीन में इमीडिएटली रिफ्लेक्ट कर गई. एंड यू जस्ट नीड टू राइट क्लिक, इनिशियलाइज द डिस्क, GPT MBR और इसका पार्टीशन बना सकते हो. सर यहाँ एक क्वेश्चन था. या प्लीज. सर अभी डिस्क हमने अपने माउंट किया नया हार्ड डिस्क, तो इसके लिए मशीन शट डाउन करने का ज़रूरत नहीं पड़ा. इसका हार्ड रीज़न डिस्क क्या है सर? स्टोरेज के लिए, हार्ड डिस्क के लिए कभी भी हमें मशीन को टर्न ऑफ करने की या रीस्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. ओके ठीक है. ओके.
हम रनिंग मशीन के अंदर हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क को इंक्रीज कर सकते हैं, नई हार्ड डिस्क अटैच कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंस्टेंस आपका रनिंग रनिंग रहेगा, कोई भी पिंग फेल नहीं Okay. आएगा। Okay. Okay. बट सीपीयू और रैम के लिए अगर आप यही एक्टिविटी सीपीयू और रैम के लिए हाँ। करेंगे, हम्म। sysdm.cpl, इफ यू वांट टू इंक्रीज द रैम या प्रोसेसर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रनिंग मशीन में पॉसिबल नहीं है। रनिंग मशीन में पॉसिबल तभी होगा जब आप अपने सिस्टम में हॉट प्लग एक्टिवेट करेंगे। अभी हम सिस्टम की प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं टू वेरीफाई द रैम कि कितनी रैम इसमें मिल रही है। तो एज पर द कॉन्फ़िगरेशन 2 कोर प्रोसेसर हमने दे रखा था और 4.0 की हार्ड डिस्क अवेलेबल है। अगर आपको रैम बढ़ानी है, सीपीयू का कोर बढ़ाना है, तो उस केस में मशीन को शट डाउन करना पड़ेगा। बट वी हैव ऑप्शन ऑफ हॉट प्लग। हॉट प्लग क्या करता है Okay. कि आप रनिंग मशीन में कोई भी चेंजेस कर पाएंगे। बट अभी हम विदाउट हॉट प्लग देखते हैं क्या हम कुछ चेंजेस कर पाते हैं या नहीं। एडिट सेटिंग पे जाएंगे, गो टू द एडिट सेटिंग वर्चुअल मशीन की, और वी हैव अ सीपीयू एंड रैम बोथ ऑप्शन अवेलेबल। बट आप देखिए ये ग्रेड आउट दिखा रहा है, इट मीन्स दैट इंस्टेंस को Yes. आप टर्न ऑफ करेंगे, देन यू आर एबल टू डू दैट। अगर आपका इंस्टेंस Okay. टर्न ऑफ है तभी आप इसको मैनेज कर पाएंगे। ठीक है। बट इफ यू वांट टू मेक अ चेंजेस इन रनिंग मोड, अगर आपको इंस्टेंस के अंदर रनिंग के केस में कोई चेंजेस करना है, मीन चलते हुए मशीन में आप रिप्लेस करना चाहते हैं, सीपीयू और रैम ऐड करना चाहते हैं, so in this case what you need to do, in this case you must need to activate the hot plug। आपको सिर्फ ये करना है, एक्शन पे जाना है, एडिट सेटिंग पे जाना है, और सीपीयू और रैम के लिए हॉट प्लग अप्लीकेबल है, सीपीयू पे क्लिक करो, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है सीपीयू हॉट प्लग, Hot इनेबल plug. कर देंगे, और एज इट इज मेमोरी हॉट प्लग को आप इनेबल कर देंगे। ठीक है, ये ग्रेड आउट है क्योंकि मशीन आपकी टर्न ऑन है, तो यू जस्ट नीड टू टर्न ऑफ योर मशीन। वीएम को हम स्टॉप करेंगे, शट डाउन करेंगे, एंड देन ट्राई टू चेंज। एक्शन पे जाओ, अभी हम इसमें हॉट प्लग एक्टिवेट करेंगे, देन विल चेंज द रैम साइड इन रनिंग मोड। हॉट प्लग इनेबल फॉर सीपीयू, हॉट प्लग इनेबल फॉर मेमोरी, रैम के लिए भी यहाँ पे हॉट प्लग इनेबल कर देंगे। सेव द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन हमने सेव किया, और सेव करने के बाद वी जस्ट नीड टू पावर ऑन। सर इसमें कोई एडिशनल लाइसेंस तो नहीं लेना पड़ेगा मैं हॉट प्लग के लिए? No, 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 it's just a feature of our existing license। ओके। We successfully turn on our virtual machine, यहाँ पे हम इसको एक्सेस करते हैं, and let's try to check are we able to access, are we able to change the RAM or CPU or not। Done। I'm just going to open the configuration again।
4 GB की रैम है, हम इसको 5 GB में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जस्ट वांटेड टू इंक्रीज। मशीन हमारी रनिंग में है, हॉट प्लग एक्टिवेट होने की वजह से आप अपने इंस्टेंस में रनिंग के केस में वीएम को के रैम को सीपीयू को दोनों को चेंज कर सकते हो। तो आई एम जस्ट गोइंग टू गो क्लिक ऑन एक्शन, एडिट सेटिंग। इंस्टेंस हमारा रनिंग मोड में है एंड आई एम गोइंग टू मेक इट 5 GB, 5 GB कर देते हैं इसको। सीपीयू कोर को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो अभी हम इसको 5 GB में कन्वर्ट कर रहे हैं रनिंग के केस में। यू आर एबल टू डू दैट ओनली बिकॉज ऑफ हमने इसका हॉट प्लग एक्टिवेट कर रखा है। अब अगर आप पेज को रिफ्रेश करेंगे, अभी यहाँ पे 4 GB के आसपास का स्पेस दिखाई पड़ रहा है। जस्ट नीड टू रिफ्रेश द पेज। ओपन आवर सिस्टम प्रॉपर्टीज अगेन। अब आपके पास जो रैम की कैपेसिटी है वो टोटल 5 GB के आसपास दिखाई पड़ रही है। इज दैट करेक्ट? So Okay. the meaning of hot plug, we are able to make a changes with the capacity of our RAM and processor in running mode. हमें क्या करना होगा? We just need to activate the hot plug for any virtual machine. ये virtual machine की features में आएगा। तो we just need to activate the hot plug for any virtual machine and we are able to make a changes with processor and RAM दोनों के केस में, no matter कि आपकी VM की कंडीशन क्या है। Is that fine? Okay. Sir, can I ask one question, sir? Yeah, sure. यस सर, ये हॉट प्लग जो इनेबल हुआ है, मतलब फीचर आई है, ये हमारे कौन से वर्जन के बाद आई है सर? ये 7.5 के बाद है क्या, या पहले स्टार्टिंग से नहीं ही नहीं थी हमारे नहीं, पास? पहले हॉट प्लग पहले से था। ओके, इन क्योंकि जनरली जो यूज 5.5, करते हैं सॉरी। बहुत, मैं कह रहा जनरली ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम लोग यूज करते हैं। मैं जैसे वीएमवेयर, अभी तो मैं मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए वीएमवेयर यूज करते हुए, 1 ईयर हुआ है। तो मैं देखता था पुराने, जब जो मेरे यहाँ पे वीएम एडमिनिस्ट्रेटर है, तो मैं उनसे कई बार बोलता था वाई रीस्टार्ट, तो कहते थे कि वी नीड टू चेंज, नीड टू रीस्टार्ट और शट डाउन मशीन टू अपग्रेड द, इसका जो नहीं है नहीं नहीं, सीपीयू रैम बढ़ानी पड़ेगी। 6.0 के बाद से, राइट, 6.0 के हम्म, बाद से हर एक ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रेफर करते हैं रियल इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंट करने के लिए। दे डोंट वांट ओके, टू टर्न ऑफ आवर मशीन, क्योंकि उससे पिंग फेल होता है। अगर आपने कोई वेब सर्वर या डेटाबेस सर्वर इस्टेब्लिश किया है और गलती से आपने रीस्टार्ट किया, तो इट विल इम्पैक्ट टू योर वेबसाइट, इट विल इम्पैक्ट टू योर डेटाबेसेस ना। या, हम्म, यस सर, वो डेटाबेस पे इम्पैक्ट करेगा अपने। तो दैट्स व्हाई वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद दिस ऑप्शन। ओके सर। सर जैसे हमने अभी डिस्क ऐड करी है, वो तो एडिशनल डिस्क है कि कहीं से दूसरी जगह से स्टोरेज से हमने ऐड की? तो अभी जैसे वो जो फर्स्ट डिस्क थी उसमें अगर जाएंगे, तो फर्स्ट डिस्क में 10 GB जो हमने दिया था, उसी को 20 GB बढ़ा सकते हैं उसी सेम स्टोरेज में? कोई इम्पैक्ट तो नहीं है? सेम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, जो हार्ड डिस्क हमने लगा रखा है, राइट? हाँ, पहले वाली जो प्रीवियस लगा रखी थी वहां पे। got it. So I'm just going to open disk management again to show you disk management। कितनी हार्ड डिस्क हमने ऐड कर रखी थी? 10 GB, 5 GB की या 10 GB की, राइट? फर्स्ट वाली जो है सर, डिस्क वन, डिस्क डिस्क जीरो वन। सॉरी। हाँ, ओके, डिस्क जीरो। यस, वी कैन डू दैट। ओपन आवर वर्चुअल मशीन प्रॉपर्टीज, बट मेक श्योर यू हैव इनफ स्पेस। ठीक है, अपने पास स्पेस होना चाहिए। 15 जस्ट जीबी आप स्पेस दिया था। क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं कर सकते? सॉरी, 15 GB हमने स्पेस दिया था पहले। हम्म, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट 18 GB। ठीक है, 15 GB को हमने क्या ओके, कर दिया, 18 GB में कन्वर्ट कर दिया। देन वी सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर। बैक टू द या, वर्चुअल मशीन प्रॉपर्टीज, यहाँ पे पेज को रिफ्रेश कर दो एक बार, ताकि जो चेंजेस किए हैं वो रिफ्लेक्ट हो सके। ओके, ओएस टाइप के लिए आई थिंक वी नीड टू रीस्टार्ट, वैसे होना नहीं चाहिए। रीस्टार्ट, मे बी रीस्टार्ट इज रिक्वायर्ड बिकॉज दिस इज सर द एक्चुअल डिस्क डिस्क डिस्क। मैनेजमेंट को रिस्टार्ट करके देख सकते हैं। इस पेज को डिस्क मैनेजमेंट वी कैन रिफ्रेश दिस वन सो। क्योंकि सर एजोर के केस में तो मैं सेम यही एनवायरनमेंट, हाँ, आ गया सर, आ गया, Yes, सही sir. है। 3 GB unallocated space. यस सर, बिल्कुल It's सही है। showing. ओके, थैंक यू सर।
ठीक है, वी जस्ट नीड टू राइट क्लिक और इसको एक्सटेंड कर देंगे। गॉट इट सर। extend. नो सर, डिलीट। एक्सटेंड वॉल्यूम में भी शट डाउन रिक्वायर्ड। सॉरी, नहीं नहीं नहीं। Oh, sir, I think this is happening. I वन think दिख रहा। maximum four basic partition Windows 10 supports. I think that's why it's showing maybe. मे बी ओएस दिख से तो सर, इसलिए मे बी रीस्टार्ट होने पे या शटडाउन में बढ़ेगा हाँ साइज, सारे ऑप्शंस लगेंगे, राइट। क्योंकि वो रीड बट नहीं वी कर आर एबल टू पाएगा। क्रिएट अ पार्टीशन, यहाँ पे हम नए हार्ड डिस्क को पार्टीशन क्रिएट कर पा रहे हैं। या ठीक है सर, आई गॉट इट। यस। Yes. तो अभी हमने आज क्या क्या चीजें कवर कर ली। वी कंप्लीटेड द ओएस इंस्टॉलेशन, VMware टूल्स हो गया, सीपीयू या। रैम चेंज करके देख लिया, और हॉट प्लग एक्टिवेट करके देख लिया, राइट। यस। तो L1 लेवल के लगभग टास्क हमने परफॉर्म किए। स्नैपशॉट विल टेक टाइम, क्योंकि इसमें हम ट्रबल शूटिंग भी कवर करेंगे। सो वी नीड टू प्रोसीड इट नेक्स्ट वीकेंड, क्योंकि पहले आप इतना कंटेंट जो हमने कंप्लीट किए हैं 2 क्लासेस में, इन 2 क्लासेस को आप प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली कवर करेंगे, देन विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो चलना पड़ेगा, क्योंकि वी सेंटर सर्वर वगैरह हमें आसानी से समझने में आ जाए। सर वो सर थोड़ा ये सा वो भी नोट्स बता का दीजिए सर, आप कह पीडीएफ। रहे थे। यस सर, नहीं पीडीएफ और सर, एक ये तो सर नोट्स का थैंक यू वेरी पीडीएफ। मच, आपने कोर्स को दे दिया है सर। आपने वो दे दिए हमें, मतलब वो दे दिया है हमने कंटेंट्स कि हमें क्या क्या कोर्स कवर करने हैं, तो आपने थैंक यू वेरी मच वो दे दिया है सर हमें आपने। तो सर एक ठीक आप है, कह रहे थे मैं कि इस पीडीएफ इसको कोई कंपाइल डॉक्यूमेंट करना आपके पड़ेगा, पास। कंपाइल करना पड़ेगा। इसकी डिटेल और अदर से जो पीडीएफ है उनकी मैं आपको सेंड कर दूंगा, मे बी बाय टुमारो। यस सर, हाँ, नो लास्ट प्रॉब्लम। वही सर, लास्ट वीक जो वीकेंड पे जो था, और ये दोनों। हाँ ये ठीक है, वाला वी डोंट हैव आरडीपी का ऑल कैसे सेट। कॉन्फ़िगरेशन करेगा? विंडोज का सॉरी, आरडीपी से सर कोई सेटिंग सर, बेस मशीन से वो जो वर्चुअल मशीन में कनेक्ट करेगा। हाँ, पुटी से देख लिया, वो आरडीपी को कैसे कनेक्शन करेगा? विंडोज 7/10 का है MSTSC के थ्रू आप कनेक्ट कर लेंगे ना, यू जस्ट नीड टू सर, एग्जीक्यूट द बेस कमांड ऑफ मशीन से MSTSC। VM को। हाँ हाँ, डायरेक्टली आप MSTSC पे करेंगे, ये आपका बेस मशीन, इसका आपको चेक करना पड़ेगा। IP कॉन्फ़िग हम्म। 119 1.19, इसको आप बेस मशीन पे जाएंगे, ओके। MSTSC 192.168.1.19, यू नीड टू टर्न ऑन इट। यहाँ से आप डायरेक्टली आई एक्सेस थिंक कर ऑन पाएंगे, नहीं बट है। नहीं ऑन है। नहीं है ऑन ना, नहीं है ये ऑप्शन। ऑन। सिस्टम प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, रिमोट पे जाएंगे, रिमोट और इसको डेस्कटॉप, टर्न ऑन करेंगे। टर्न ऑन, ओके। कंफर्म। नॉर्मल विंडोज प्रोसेस ना ये तो। हाँ हाँ, बेसिक स्टेप में यूज करते हैं। सर एक वो वाला भी बता दीजिए सर। चलो पहले सर ये कर लीजिए आप, नेक्स्ट है। अच्छा, यहाँ का आईपी का कुछ कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? सपोज IP इसमें मोस्टली हम CMD में, सॉरी, डिफॉल्ट यूज करते हैं, मींस DHCP के थ्रू, ओके। बट वी हैव ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर इट।
इज दैट ओके नाउ? Yes. अब यहाँ से आप RDP एक्सेस कर पाएंगे। हेलो। हेलो। हाँ। Yes. We are able to access. Okay, sir. Oh, Is that clear? Yes. yes, yes, Guys, Yes. allow me just 2 minutes. Everyone, can you hear me? Yes, sir. Yes. ठीक Yes. है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, डाउट? No, sir. No, sir. सर यस सर, मैं कहता सर लैब टेस्ट को हम कैसे करेंगे सर? लैब के लिए मैं आपको एक लिंक भेजूंगा दैट हेल्प यू टू क्रिएट योर ओन अकाउंट, और वहां से आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ओके। ठीक है, सो आई सेंड यू द रिकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट मिलते हैं हाँ सैटरडे को एंड डिस्कस सर, अबाउट सर्विस। सैटरडे का सर जो क्लास टाइमिंग का था सर, उसका कुछ हो सकता है क्या? बिकॉज 6 बजे एक्चुअली सर ऑफिस। सैटरडे 6:30 कर दें? हाँ 6:30 सर 7:30 ओके सर, रहेगा। ठीक है 6:30 करिए सर, 6 मत करिए सर। हाँ, थोड़ा वो तो सिक्स urgent है। थर्टी चलो सर। 6:30 कर देता हूँ, क्योंकि दूसरे वाले बैच को मैं एक बार आज गाइड कर देता हूँ कि 8:30 से स्टार्ट होगा, तो 6:30 टू 8:30 हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे मैनेज। ठीक है? ओके ओके ठीक सर। है सर, रशीद ओके, सर, थैंक यू। ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। ओके एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम।
Thank you, sir. Welcome.